He came in at very short notice and made an impact in the match that he played. Mohammad Siraj. Coming up next, put your hands together, Arshdeep Singh. Always there in the field, Rinku Singh. Put your hands together for Washington Sundar. He bats wherever you ask him to. Tilak Varma. The very special Kuldeep Yadav. And finally, his moment as much as anybody else's, the captain, Surya Kumar Yadav. He's been through so much in his career, Surya Kumar Yadav, with bat as leader, kept faith with his key players, and when the moment came, the players rewarded him with a performance for the ages in the last 3 or 4 games especially. Come along, Surya, come along. Has it sunk in that you've created history? The first home team to win, the first team to retain the title. Has it sunk in? I think it will take a little bit of time, but definitely very happy with what has happened today. It has been a long journey. Started post 2024 World Cup when BCCI at that time, Jay Bhai, that time Secretary, Rohit Bhai and everyone, they showed faith in me, gave me an opportunity to lead this wonderful side, and then it was a long cycle coming here again at the Sri Narendra Modi Stadium and doing it. I think it's a special feeling. How do you keep the pressure of being favourites away? Everyone's talking about India being favourites. What was that the conversation in the dressing room as well, saying we are front runners, we'll do it? I think we knew that we were playing some good cricket throughout the 2 years, and it was going really well. We just wanted to follow all the good habits which we followed in 2024 T20 World Cup. Tell the boys the same thing. What is the feeling of winning a World Cup? How do we want to play in the bilateral series? That taste which we want to take forward and go on to play a T20 World Cup. I think that was actually imbibed to everyone, to the team, and boys took it really well. It was particularly admirable that you kept faith with players. Whether it was Varun Chakravarti, whether it was Abhishek Sharma, whether it was Sanju Samson. I think it's really important to understand what they are capable of, and I knew they had the match winners in them. I think the timing was perfect for Sanju to come in. Varun Chakravarti, Abhishek Sharma, world #1 players. We always knew that they had something special. No bigger stage than a final to do something, and also especially how Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Akshar Patel, they have been in the circuit for a really long time, taking care of each other with all the support staff. I think it was very special. Tell me how it is to have that magician Bumrah in your side. That's what I said. Like how Sanju said in the last game, he wanted to give his man of the match to Jasprit Bumrah. Once in a generation bowler, I can call him as a national treasure right now, but he knows what needs to be done, how it needs to be done, the best in the business, and hopefully he keeps doing that. They're all looking here, they're waiting for you to go there. Surya Kumar Yadav, captain of India, it must be a fantastic feeling. And now you can go and receive your trophy from Mr. Jay Shah, chairperson of the ICC. And well done. Thank you, Ahmedabad. And this is the moment that you wait for in your career. In front of your home crowd, winning the ICC T20 World Cup for the second time. Ladies and gentlemen,
Surya Kumar Yadav and Team India. जैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सबने कहा घर पे नहीं जीता गया है, डिफेंड नहीं की गई है ट्रॉफी, और तीसरी बार क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन क्या बात है टीम इंडिया, घर पे जीता है, डिफेंड करके बताया, हिस्ट्री को रिपीट और डिफीट करके दिखाया है, और उस मैदान पे किया है जहां पे बहुत जख्म मिले थे, खूब सारी दर्दनाक यादें थी, उन सारी यादों को खुशनुमा फिर से बनाया है। भारत ने खुश को एक बार फिर से विश्व चैंपियन बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग अरीना में 1 लाख दर्शकों के सामने और करोड़ों के सामने जो अपने मोबाइल फोन्स और टेलीविजन स्क्रीन पे आहे भरे देख रहे थे कि ये लम्हा कभी तो आएगा। ये लम्हा आ गया है, ये शाम आ गई है। सूर्य कुमार यादव की टीम ने, उनके जाबाजों ने ये शाम अपनी बना ली है। अहमदाबाद की ये शाम सितंबर 2007 की उतनी है जितनी है जून 2024 की। अब उसमें मार्च 8 2026 का पन्ना जोड़ दीजिए। ये ऐसा उपन्यास जो खूब सारे उल्लेखनीय काम लेके आया है, ये फाइनल की एक शाम में घर पे अपने मैदान पे एक कमाल की शाम लेके आया है। वेल डन सूर्या, वेल डन टीम इंडिया, वर्ल्ड चैंपियंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक सफर जिसकी शुरुआत हुई थी वानखेड़े स्टेडियम में इस मुहिम के साथ कि 8 मार्च को यहाँ पे 1 महीने के बाद यही लम्हा में जीना यूजी वो करके बताया है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले अगर आप सबका सुनेंगे वी आर द फेवरेट्स, थोड़ा सा प्रेशर था कि ग्राउंड में अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, और लेकिन जो ये टीम थी ना वो बायोड्रेस से दिख गई थी कि इस टीम में ना सब कुछ है। संजू की बात करो या अर्शदीप की बात करो, रिंकू की बात करो, सबकी बात करो ना, ये टीम जो खेली है ना एकजुट होकर खेली है, और आज जब जीती है ना, मतलब इन्होंने ना, हर भारतीयों का एक सपना था कि वर्ल्ड कप हम वापस जीते। 2024 हुआ था, 2026, लेकिन होम सॉइल में कोई टीम आज तक नहीं जीती थी, इस टीम ने वो करके जिताया। ये ना अब ये जो पल है ना, ये अगले 2 साल तक ना हम ऐसे जिएंगे, जब भी हम याद करेंगे ना आपको, ये आपकी आंखें नम करेंगी, आपके चेहरों पर मुस्कान ला के देंगी। विश्व चैंपियन भारतीय टीम, नंबर 1 टीम, नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर और एक गजब के कप्तान के साथ उतरे। बहुत सारे मैच विनर्स रास्ते में आए। ईशान किशन ने पहले मोर्चा संभाला और फिर संजू सैमसन ने आगे का रास्ता दिखाया। 2 लगातार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स उनके, और जसप्रीत बुमराह नेशनल ट्रेजर, रोबोट, भगवान के समान कुछ फैंस के लिए उन्होंने एक और प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी। करियर में पहली बार 4 विकेट अपने नाम किए और ये शाम भारत के नाम किए। सेलिब्रेशन चलते रहेंगे अहमदाबाद से लेके भारत के और दुनिया के हर कोने में जहां पे भारतीय फैंस ने इस टीम के साथ दिल लगाया है। वर्ल्ड चैंपियन होने का सम्मान एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए आया है। आइकॉनिक सेलिब्रेशंस है वीरूपाल, ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखे थे, ये हमने ब्रिजटाउन बारबेडोस में भी देखे थे। 2023 के कितने सारे सबक हैं जो अब लगातार ये भारतीय टीम झोंकने में सफल रही है परफॉर्मेंस के रूप में। 2026 ये 2 वर्ल्ड कप ऐसे हैं जो फाइनल आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, वनडे क्रिकेट का, उसके बाद जो ये 2 ट्रॉफियाँ आई हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी हम लोग जीते हैं, तो बहुत कुछ सीखा उस वर्ल्ड कप से कि हमें क्या करना चाहिए, फाइनल में बेहतर कैसे खेलना चाहिए। आई थिंक अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, ये करके दिखाया इस भारतीय टीम ने पिछले वर्ल्ड कप में भी और इस वर्ल्ड कप में भी। कमाल की पारी रही, कमाल की शुरुआत रही है। जब संजू और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, इन तीनों ने अर्धशतक बनाए और वो खेल रहे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद भारत 250-300 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और वो करके दिखाया भारत ने। 255 रन बनाए, और मैंने ऐसा फाइनल बहुत कम देखा जो वन साइडेड रहा हो।
एकदम वन साइडेड कर दिया भारत ने। जो भारत ने ये दिखाया कि भाई उनसे बेहतर T20 फॉर्मेट में दूसरी टीम अभी फ़िलहाल कोई और नहीं है। विरूपा, एक होता है कि कहना कि हम एक तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन 300-250 प्लस के टोटल्स जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल में ऐसा कर पाना अंडर प्रेशर, राइट? आप घर पे खेल रहे हैं अपने होम कंडीशंस में, फैंस को आप 12th मैन कहते हैं, लेकिन दबाव भी उन्हीं का आता है इवेंचुअली। इस कथनी को करनी में तब्दील करने में सबसे बड़ा हाथ आप किसका मानते हैं? बिल्कुल, देखिए ज़रूर हमारे देश में जो फैंस हैं वो उनको उम्मीद है कि हर बार आईसीसी का टूर्नामेंट के लिए हर बार जीते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो दबाव ज़रूर आता है, लेकिन ये प्लेयरों ने करके दिखाया कि हम लोग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। रोहित शर्मा के अंडर से वो क्रिकेट की थी कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, और उसको फॉलो किया है सूर्य कुमार यादव की इस टीम ने। जैसी क्रिकेट देखी है, ऐसी बहुत कम टीम है जिन्होंने इतना डोमिनेंस दिखाया है कि सेमीफाइनल में 250 रन, फिर उसके बाद फाइनल में 250 रन। तो ये डोमिनेंस वापस बार बार आना, बार बार दिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भारतीय टीम कर रही है, आगे आने वाले टाइम में भी करती रहेगी, क्योंकि थैंक्स टू आईपीएल। क्योंकि आईपीएल से जो टैलेंट आता है वो टैलेंट की कमी नहीं हो रही हमारी टीम में। अभी देखिए, अगर हम लोग बाहर बैठे हुए टैलेंट की बात करें तो कितने सारे लड़के जो बाहर बैठे हो, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, जिनको इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने का मौका नहीं मिला है। तो वो आगे आने वाले टाइम में वो भी होंगे जो भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे। तो मेरे ख्याल से थैंक्स टू आईपीएल और भारतीय बीसीसीआई जिन्होंने वो इस टैलेंट पूल को संभाल के रखा है। और ऐसी डोमिनेंस शायद ही आपको एक टाइम की ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई थी, एक टाइम की वेस्ट इंडीज़ ने दिखाई थी, 70s 80s की वेस्ट इंडीज़ ने दिखाई थी, फिर उसके बाद 90s की शायद ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई थी, और उसके बाद अब ये भारतीय टीम वो डोमिनेंस दिखा रही है। इंटरेस्टिंग है ना यूजी, क्योंकि हम ऑब्वियसली वो चेहरे देखेंगे जो पोस्टर बॉयज रहे हैं भारतीय क्रिकेट के, लेकिन जैसे जैसे विजुअल्स आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, सपोर्ट स्टाफ नजर आता है जिन्होंने इतनी मेहनत मशक्कत की है। इंजरीज आती हैं, लोगों की रिकवरी जो है एक सवालिया निशान बन जाती है। कितना बड़ा रोल है इस पूरे कोचिंग स्टाफ का कि अब हम इसे एक आदत की तरह लेके चल रहे हैं, यार वर्ल्ड कप है, घर पे है तो हमारा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स स्टाफ है ना, वो एक इस टीम की नींव है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप एक ना पहले ये लगता था कि यार कब आएगा 2024, 2026, 2025 में वुमेन्स भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। तो मतलब अब इस आदत को ना छोड़ना नहीं है। अब धीरे धीरे पहले विराट भैया, रोहित भैया थे, भाई ने स्टार्ट किया, अब हार्दिक, ये लोग ना, अब नया प्लेयर इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये ना एक भूख है, एक बार खून है, अगर मुंह पे लग जाए ना, इसकी आदत होनी चाहिए। और हमारी टीम चैंपियन है ना, मतलब अब और आपको ना लगेगा कि यार कि एक खौफ बढ़ जाएगी इस टीम से कि अब हमें जो भी अब टूर्नामेंट खेलो आईसीसी का, हमें ट्रॉफी चाहिए। और ये टीम डेफिनेटली करके देखेगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत लंबी और बहुत सारी ट्रॉफी आनी बाकी है। वीरूपा, ये कहानी जो है अब काफी लंबी खींच चुकी है और भारतीय फैन शुक्रगुजार है कि ये और लंबी जाने का वादा रखती है, क्योंकि 2024 के ऑब्वियसली विजुअल्स यूजी को याद है अच्छी तरीके से। इन कैद कर लीजिए अपने मोबाइल फोन्स पे, क्योंकि ये बहुत स्पेशल चीज़ है जिसे हम ऑलमोस्ट एक औपचारिकता मान के चल रहे हैं कि यार हमारे घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत कम मैदान है जहाँ पे इस तरह की महफिल सज सकती है, और उस मैदान में किया है जहाँ पे ऑब्वियसली वो 19 नवंबर की यादें सभी के साथ रही हैं। लेकिन आईसीसी के हम सिकंदर है वीरूपा, इसमें मैं आना चाह रहा था। 2024 मेंस T20 वर्ल्ड कप से जैसे जो भार उठ गया, उसके बाद 2025 विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर विमेंस वर्ल्ड कप जो हमने घर पे जीता हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। देन 2026 आयुष मात्रे की टीम ने मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और मेंस T20 वर्ल्ड कप नाउ। तो ये ट्रॉफीज की जो अब झड़ी लग गई है, आई मीन क्या ये बेस्ट एरा है इंडियन क्रिकेट का बाय फार? जब आप मुड़ के देखते हैं अपने करियर की शुरुआत को, तो क्या यही वो सपना है जो आज हम जी रहे हैं, जो हमेशा से जीना चाहते थे? बिल्कुल, फार हमारे ज़माने से बात करें और आज के ज़माने की बात करें तो ये फार बेटर है हमसे। मैं ये कहूँगा कि जो ट्रॉफियाँ इस टीम ने जीती हैं पिछले कुछ 3-4 सालों में, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप 24, फिर T20 वर्ल्ड कप 26, ये बैक टू बैक ट्रॉफियाँ जीतना आईसीसी की, जो हम बहुत मुश्किल से एक वर्ल्ड कप जीत पाए थे 2011 का या 2007 का पहले। तो बड़ा टाइम लगा था हमें वो एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लेकिन अब पिछले 3 साल से हम लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो।
लेकिन एक चीज़ भारतीय टीम ने करके दिखाया, 2011 में हमने शुरुआत की थी 50 और वर्ल्ड कप जो होम नेशन था उसने कभी नहीं जीता था, वो हमने पहली बार जीता इंडिया ने। और फिर 2026 में भी T20 वर्ल्ड कप होम नेशन ने कभी नहीं जीता, जो इस भारतीय टीम ने करके दिखाया। तो हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरीवन जो वहाँ पर हैं, सिर्फ प्लेयर ही नहीं, सपोर्ट स्टाफ जितना भी वहाँ मौजूद है, कोचिंग स्टाफ जो भी वहाँ है, उन सबको मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उनकी भी मेहनत है, सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत नहीं है। दिन रात उनको प्रैक्टिस, मीटिंग्स, एक माहौल बना के रखना, वो कोचिंग स्टाफ का भी काम है। तो उन्होंने कमाल किया है इस कोचिंग स्टाफ ने और इस भारतीय टीम ने। उनकी सबकी तारीफ बनती है, ये डिजर्व करते हैं। वीरूपा, क्योंकि 2011 के विश्व कप की चर्चा हुई है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल डेटा है। वो 10वां ODI वर्ल्ड कप था, वो हमारे घर पे था और हम पहली टीम बने घर पे जीतने वाले। ये 10वां T20 वर्ल्ड कप है, ये घर पे है और हम पहली टीम बने घर पे जीतने वाले। आई डोंट नो इफ यू आर सुपरस्टिशियस, लेकिन इस विधि के विधान को आप कितना मानते हैं? देखिए, मैं इन सब बातों को तो नहीं मानता, बट ये एक चीज़ तो तय है कि जो लिखा है किस्मत में वो तो होके रहता है, वो तो मिल के रहता है। और इस भारतीय टीम ने अपना हक लिया है, मैं कहूँगा। जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही थी, तो पिछले कुछ सालों से वो डोमिनेंस दिखा रही थी T20 फॉर्मेट में। सारी ज़्यादातर हम लोगों ने बायलैटरल सीरीज जीती हैं, पिछला वर्ल्ड कप जीता है, हम लोगों ने इस वर्ल्ड कप को डिफेंड किया है। वैसे बहुत कम टीम ऐसा कर पाई हैं। 3 बारी T20 वर्ल्ड कप जीतना आसान काम नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। तो हैट्स ऑफ टू भारतीय टीम के लिए। जसप्रीत बुमराह दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। 2024 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच, एक ग्रैंड फिनाले में अहमदाबाद से ही रास्ता शुरू हुआ था। अहमदाबाद में आके एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। यूसी, ये कितना स्पेशल मोमेंट उनके लिए है। एंड ऑफ कोर्स ईशान किशन, मतलब झारखंड को जिताने के बाद शायद सोचा भी नहीं होगा कि 8 मार्च को एक दिन एक डिसाइसिव हाफ सेंचुरी आएगी एक वर्ल्ड कप फाइनल में। नहीं, बिल्कुल, ईशान 2 साल से टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में जो कहते हैं ना, आप जाइए, खेलिए, डोमेस्टिक खेलिए और परफॉर्म करिए, और वही उन्होंने किया। उन्होंने झारखंड को पहला T20 शहीद मुश्ताक ट्रॉफी जिताया, वहाँ पे फाइनल में 100 रन मारे। और जब आप डोमेस्टिक में इतना खेल के आते हैं ना, तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। उनको शायद पता नहीं था कि मैं 2026 का वर्ल्ड कप खेलूंगा, लेकिन उन्होंने प्रोसेस नहीं छोड़ी। वो अपनी मेहनत करते रहे और किसी ने नहीं देखा उनको क्या कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें लगा वो चमके हैं। और रही बुमराह की बात, यार, मतलब मैं कहता हूँ सब बैट्समैनों की बातें करते हैं भाई, बुमराह की बात सबसे